okay. In the last extra lecture, we discussed about this stack and the various operations you can perform on this stack. So today we are going to discuss the applications of the stack. So guys, stacks are mainly used to convert an arithmetic operation from one form to another. So generally there are three types of your arithmetic operations: infix, prefix and postfix. So what is the infix operation? A ऑपरेटर B. इनफिक्स का मतलब क्या आएगा कि दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर होगा, दैट इज नोन एज इनफिक्स. द नेक्स्ट वन इज द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब जो भी आपका ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड्स के पहले होगा, लाइक दिस. एंड पोस्टफिक्स, आपका ऑपरेटर क्या होगा ऑपरेंड्स के बाद. A, B plus. So there are three types of the expressions: infix, prefix. Generally, the humans, we are using this operation, this kind of the operation, arithmetic expression in fixed type. But your computers is working in the Ma'am, your voice is breaking. ऑपरेंड्स के बाद में होगा. एंड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में ब्रैकेट्स नहीं होंगे, किसी भी तरीके की ब्रैकेट्स नहीं यूज होंगे. And the next application is that stacks are used in the compiler for parsing the syntax of the expressions. The third one, certain programming languages are the stack oriented. If you want to perform, for example, you want to add two numbers, that time we are going to use the stack or another kind of mathematical operation. That time we are going to use the stack. And the stacks are used in the function calls, and whenever you are going to use any recursion, that time your recursion will be placed with the help of stack. And some programming languages are like C is used to store the local data on a stack. So now next onwards we are going to study all the applications of the stack. So the first application is that converting the infix to postfix expression. For example, अगर हमारे पास expression है कुछ, for example a plus b, as we know that यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटर क्या है, दो ऑपरेंड्स के बीच में है. There can be two variables, there can be two numbers, for example 2 plus 5. तो ये इनफिक्स हुआ. अब हम इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में. So anyone is having any kind of idea? Ma'am, +7. No. Plus AV. AB plus. इसमें कैसे Operators used after the Ma'am, -10. -10 कहाँ से आ? +10. B. हमें रिजल्ट
Ma'am, your voice is breaking. So guys, here we are not going to implement the result. We are not going. Just हमें जो हमारा ये expression है a plus b. मैम मैम Ma'am, your voice is आपको breaking. अच्छे ma'am. से नहीं सुन पा रहे हैं लोग, Yes, ma'am. इसलिए डाउट क्रिएट हो रहा है। So that I can speak from my phone. हेलो मैम, आप कुछ भी बोल दे Yes, रही हैं, sir. लास्ट वाला वर्ड जाके सुनाई दे रहा है हम लोग को। जैसे मैं डिफिनीशन आप बोल दी है, Okay, लास्ट just में wait. इज नॉन एज सुनाई दे रहा है। ये बताओ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम। Yes, ma'am. आ गया। Okay. Okay. So guys, the next is the conversion of infix to postfix expression. As we already discussed, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे वर्क करेगा? पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस पे। वो इनफिक्स ma'am. में स्टोर नहीं करते हैं। अब नाउ फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वन ऑपरेशन लाइक a plus b. तो हमें इसको कंप्यूटर में स्टोर करवाना है, तो कंप्यूटर इसको उस टर्म में स्टोर नहीं करेगा। मैम सारा ऑपरेटर Computer is going to convert. Computer is going to convert this expression either into prefix or in postfix. Hello, am I audible, guys? यस मैम। यस मैम Yes. यस मैम Okay. अब फॉर एग्जाम्पल हमें इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? AB Ma'am. plus. ए बी प्लस A equals to plus B. A B plus. And A initialize. नो, ए बी प्लस। गाइस हमें कुछ रिजल्ट कैलकुलेट ही नहीं Yes, ma'am. करना, जस्ट इस ए बी को स्टोर करना है। इफ योर कंप्यूटर इज Yes, वर्किंग ma'am. ऑन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो इसको स्टोर करेगा ए बी प्लस। एंड इफ योर सिस्टम इज वर्किंग ऑन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इट इज गोइंग टू स्टोर प्लस ए बी। अंडरस्टूड गाइस? यस मैम Yes, ma'am. Ma'am. Postfix is also known as reverse Polish notation. So now, अब ये तो नॉर्मल था, a plus b था तो हमें पता है, बट अगर हमारे पास कुछ लॉन्ग वो हो, a plus b multiply c divide e then again plus h. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इसके कोई बिग ऑपरेशन हो तो हम उसको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। Yes, ma'am. So you know that in your computer systems, in your system, there is algorithm for each and every term. So here also to convert your infix expressions to the postfix, there are some rules. Let's leave this. So the first is that and add closing bracket to the end of the infix operation expression. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल a plus b मल्टीप्लाई c। अगर हमारे पास इससे कोई भी एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में ब्रैकेट्स ऐड करेंगे। सो उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग में हम इसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट। वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग यूज करेंगे स्टैक
जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को स्टोर करेंगे। एंड एक यूज करेंगे हम लोग कुछ भी एक एरे, फॉर एग्जांपल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें हम अपनी आउटपुट स्टोर करते जाएंगे। एंड एक होगा हमारी इनपुट। अब इसमें देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या आया है, यस गाइस, इस एक्सप्रेशन के सबसे स्टार्टिंग में क्या है? A plus B. नो, If operand. ऑपरेंड If मैम। operand. If operand. सबसे पहले क्या है इसमें? ओपनिंग ब्रैकेट। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आएगी, हम इसको क्या करना है, पुश दैट ओपनिंग ब्रैकेट इनटू द स्टैक। तो इसको हम स्टैक में शो करेंगे। ओके, नाउ द सेकंड इज दैट इफ क्लोजिंग ब्रैकेट। पहले इसको समझ लो, इसका एल्गोरिदम क्या है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग की ओपनिंग ब्रैकेट होगी उसको स्टैक में स्टोर करेंगे। एंड स्टेप 3 क्या बोल रहा है कि हमें फॉलोइंग स्टेप को रिपीट करना है, स्टेप 3 को। एंड स्टेप 3 का फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, इफ ऑपरेंड, ऑपरेंड बोले तो योर A B C, और अगर यहाँ पे दिया हुआ 5 2 7 एंड सो ऑन। If Elements, operand, we are going to simply add it into the postfix expression. अगर कोई भी ऑपरेंड आते हैं, वेरिएबल्स या नंबर्स आते हैं, उसको हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे। इफ ओपनिंग ब्रैकेट, उसको स्टैक में पुश करेंगे। एंड अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करते जाएंगे ऑपरेटर्स को जब तक हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती है। Again, I'm saying if there is any closing bracket, we are going to pop the elements from the stack until we are not going to find the opening bracket, and then discard the opening bracket from the stack. जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, जो हम अपना आउटपुट लिखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, वहां पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, उनको डिस्कार्ड कर देंगे। एंड इफ एनी ऑपरेटर इज फाउंड, अगर हमारा इनपुट करते करते हमारे पास कोई भी एक ऑपरेटर आया है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, अगर हमारे पास जो स्टैक में ऑलरेडी ऑपरेटर है, अगर उसकी प्रेसिडेंस हाई है और सेम है, इफ जो स्टैक में हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटर है, इफ दैट ऑपरेटर इज हैविंग द हायर और सेम प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू द ऑपरेटर जिसको हम इनपुट करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे एंड ऐड करते जाएंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। पॉप कब तक करना है, जब तक हमें स्टैक में उस ऑपरेटर से छोटे वाला ऑपरेटर नहीं मिल जाता जिसकी प्रेसिडेंस उससे कम हो। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा इनपुट वाला ऑपरेटर होगा उसको पुश कर देंगे। नाउ let me make this more clear with this example. For example, we're having the input A plus B into C. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A एंड B में क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड देन जस्ट एज्यूम हमारे पास इनपुट में सबसे पहले क्या आया, ओपनिंग ब्रैकेट। Opening bracket. हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आएगी, हम उसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश। सेकंड क्या है ओपनिंग ब्रैकेट के बाद, ए Operand. Yeah. ए इज द ऑपरेंड। एंड अगर नेक्स्ट Yes, इनपुट ma'am. में हमारे पास क्या आया है, ए। एंड इफ एनी ऑपरेंड, वी आर गोइंग टू सिंपली ऐड दैट ऑपरेंड इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे पोस्टफिक्स में क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट और स्टैक में हमारे पास पहले से क्या था, ओपनिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट Opening क्या है bracket. हमारे पास, expression. बी। B. B. सॉरी, नॉट बी। ए के बाद क्या आया था हमारे नेम पास, ऑपरेटर प्लस। यस, Operator. Yeah. प्लस।
अब प्लस आएगा, हम प्लस को कहाँ पे पुश करेंगे? स्टैक स्टैक में। में स्टैक में पहले से हमारे Stack पास में। यहाँ पे क्या था? ओपनिंग ब्रैकेट। ए था मैम। और स्टैक में इन हमें जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्टैक में नहीं स्टोर करेंगे। स्टैक में सिर्फ आपकी ब्रैकेट्स जाएंगी और योर ऑपरेटर्स। ओके स्टैक मैम। में Yes, ma'am. पहले से हमारे पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट। ऊपर से क्या आया? प्लस। जैसे प्लस आया, Plus. पहले हमारे पास स्टैक में टॉप यहाँ पे था, ओपनिंग ब्रैकेट पे, ठीक है? तो हम आराम से इसमें प्लस ऐड कर सकते हैं। नाउ हमारा टॉप प्लस हो गया एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पहले का ही ए था। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया है? बी। B operand. बी। तो बी आएगा तो बी को डायरेक्टली किस में ऐड कर देंगे? Input में. पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी एंड यहाँ पे क्या था? ओपनिंग ब्रैकेट एंड प्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैम। Multiplication. मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन को हमें किस में ऐड करना है? Stack में. स्टैक में। स्टैक में। अब स्टैक में ऐड करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि जो स्टैक का पहले का टॉप एलिमेंट है उसकी प्रेसिडेंस क्या है। अब ये बताओ, प्लस की प्रेसिडेंस क्या आएगी? मल्टीप्लाई से कम होती है या ज्यादा होती है? कम होगी मैम, कम होगी। कम होती है मैम. कम होती मैम ठीक है, कम होती है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंपली मल्टीप्लाई को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टॉप क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। Multiply. अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा आया है? C operand. सी मैम। सी। तो अभी हम सी को किस में डाल देंगे? डायरेक्टली पोस्ट में मैम। में और पोस्ट में। पोस्टफिक्स में ए बी सी। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या आया है? Close bracket. क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आई थी तो हमें क्या करना है? स्टैक में से पॉप करना है जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है? ओपनिंग क्लोजिंग। ब्रैकेट। Op- Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था? ए बी सी। C. अभी हमारे पास स्टैक का टॉप क्या था? मल्टीप्लाई मैम। मल्टीप्लाई। तो इसको पॉप करेंगे। अब स्टैक का टॉप क्या बन जाएगा? प्लस। Plus. प्लस मैम। प्लस। तो प्लस ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब स्टैक का टॉप क्या था हमारे पास? ओपनिंग operand. ब्रैकेट। ब्रैकेट। Opening bracket. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को हमें क्या करना है? डिस्कार्ड करना है सिंपली। तो अगर हम इनपुट ये एक्सप्रेशन करवाते हो आप, तो आपके सिस्टम में ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से स्टोर हो गया। ए बी सी मल्टीप्लाई देन प्लस। अंडरस्टूड गाइस दिस एग्जांपल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। Ma'am, another example दीजिए ना Sorry? कोई. मैम। मैम। अभी एग्जांपल अभी और करेंगे। Ma'am. दिस इज द मोस्ट बेसिक वन। यस सर। हेलो मैम। यस बोलो। लॉजिक समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप जो एल्गोरिदम लिखी है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एल्गोरिदम सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में एक ब्रैकेट्स ऐड कर देना, ठीक है? तो जब भी आप एक्सप्रेशन स्टार्ट करोगे लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा? एक ओपनिंग ब्रैकेट। उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे एंड उसके बाद क्या करना है? हमें स्टेप 3 को रिपीट करना है जब तक हमें लास्ट वाली हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट पे नहीं पहुंच जाते। अगर कोई भी ऑपरेंड आता है उसको स्टैक में ऐड कर दो। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आती है वो भी स्टैक में ऐड होगी। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो जब तक उसके साथ की हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती है तब तक हम उसमें से एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएंगे। एंड अगर ऑपरेटर आता है तो हमें क्या करना है? चेक करना है। एक सेकेंड, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। कि स्टैक के टॉप में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। अगर स्टैक का टॉप है उसकी प्रेसिडेंस जो हमारी इनपुट है उससे कम है तो हम चुपचाप से ऐड कर देंगे। बट अगर स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंस ज्यादा है या सेम है तो हम उसमें से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे जब तक हमें उससे छोटे प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं मिल जाता है। सिंपल। यस सर। अब पूछिए किसी को कोई डाउट है तो। मैम स्टैक में केवल न्यूमेरिक डाटा उसमें पुश करेंगे या कोई भी डाटा?
स्टैक में हम लोग पुश करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेटर्स एंड ब्रैकेट्स. We are going to add only operators and brackets in the stack, nothing else. So guys, here, yes. तो थोड़ा क्लियर थोड़ा बताइए वो वक्त हो जाए तो दिक्कत हो रहा है. Just wait. Let me give you one more example. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So guys, here जो प्रेसिडेंस लेवल क्या आएगी वो क्या आएगी, सबसे स्मॉल होगी आपकी प्लस एंड माइनस की. प्लस माइनस की मैम. फिर माइनस. हाँ, प्लस माइनस दोनों की सेम प्रेसिडेंस होगी. फिर मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सबसे हायर किसकी होगी, पावर की. तो मे भी Yes, हो ma'am. सकता है पावर आपको ऐसे भी दिया हो, दिस साइन. Yes. कहीं कहीं पे आपको पावर डॉलर्स में दिया होगा एंड कहीं कहीं पे दिस साइन. ब्रैकेट में. जनरली डिफरेंट बुक्स में आपको ये 3 साइंस मिलेंगे. तीनों साइंस का मीनिंग सेम ही है, एक्सपोनेंशियल. So guys, let me give you one more example. For example, we are having one expression A minus B divided by C plus B to the power E into F G multiply H. फॉर एग्जाम्पल गाइज हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स. Yes, ma'am. ओके, तो गाइज अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Open Left to brackets. right, ma'am. Left to right going to open bracket starting. ओके लेफ्ट टू राइट जाएंगे. उसके बाद See first, ma'am. पहले Open ए को मैम brackets. इनपुट कराएंगे. ओके देन उसके बाद फिर मैम ये जो है स्टेप में नहीं जाएगा, वो ओपन कर देगा. देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. यहाँ पे हमारा Yes, क्या ma'am. होता जाएगा, इनपुट. ये हो गया हमारा स्टैक. Stack. ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें, आउटपुट पोस्ट फिक्स. मैंने इसको नाम दे दिया. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टैक पे, अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो Opening Opening brackets. bracket. ओपन ब्रैकेट कहाँ पे ऐड होगी आपके, Stack में. फिर क्या आया हमारे पास, ए मैम. A. ए कहाँ पे A of जाएगा, Input. पोस्ट फिक्स में. ठीक है. Yes, ma'am. ए के बाद हमारे पास क्या आया है, माइनस ऑपरेटर. Operator. माइनस ऑपरेटर. Stack में. एक में पहले से स्टैक में हमारे पास क्या था, ब्रैकेट पहले से ओपनिंग ब्रैकेट थी, साथ में माइनस गया. अब क्या आया माइनस के बाद, Open bracket. ओपनिंग. ओपनिंग ब्रैकेट. तो ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे जाएगी, In stack में. स्टैक में इससे स्टैक में. स्टिल नाउ यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए. एंड उसके बाद क्या है हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट के बाद, B operand. बी. तो बी कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली Post में. स्टैक में आउटपुट पे. आउटपुट sir. पोस्ट पे एंड बी के बाद हमारे पास क्या आया है, Operators divided. डिवाइड ऑपरेटर. अब ये कहाँ पे जाएगा, स्टेक में. Stack अब में. देखो डिवाइड ऑपरेटर के पहले देखो हमारे पास लास्ट टॉप में हमारे पास क्या पड़ा है, ओपनिंग ब्रैकेट मैम. Opening bracket.
क्या था ओपनिंग ब्रैकेट, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड को ऐड कर सकते हैं। नो, नो क्यों? मैम, क्योंकि वो काहे? प्रेसिडेंस हायर प्रेसिडेंस देखना पड़ता है यहाँ पे। ऑपरेट ब्रैकेट्स को नहीं देखना हमें इसमें, हमें ये देखना हमारे पास Precedence. टॉप में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट है ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑपरेटर को। ओके, यस मैम। सो अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? ए और बी में। ए बी ओके, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है? सी ऑपरेंड। ई सी आया, अब सी कहाँ पे जाएगा? पोस्टफिक्स इंक्लूडिंग पोस्टफिक्स में ABC एबीसी। जस्ट अ सेकंड है, रो कॉलम सेम कीजिए मैम। वही कर रही हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज। ओके गाइस, अभी सी के बाद देखो क्या आया हमारे पास? प्लस ऑपरेटर। ऑपरेंड ऑपरेटर सी के बाद हमारे पास क्या आया है? प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर Yes, आया। ma'am. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आएगी। देखो हमारे पास पहले क्या था? ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग था, ब्रैकेट फिर माइनस था, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट था, फिर से Oh. डिवाइड था। डिवाइड अब हमारे पास क्या आया है? प्लस 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 प्लस। अब प्लस की प्रेसिडेंस क्या है? इससे कम डिवाइड है। से ज्यादा है मैम। लो है लो है लो है प्लस की कम है ना? यस मैम माइनस। अभी हमें सिर्फ टॉप देखते हैं। टॉप पे हमारे पास कौन सा है? डिवाइड ऑपरेटर है। एंड हमारे पास जो प्लस है, प्लस की क्या है? प्रेसिडेंस डिवाइड से कम है, तो हम डिवाइड के ऊपर प्लस Yes, को ma'am. नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिवाइड Yes, के ma'am. ऊपर प्लस को नहीं रख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से ऑपरेटर्स को पॉप करते जाएंगे। कब तक? जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता Opening. है? ओपनिंग ब्रैकेट। नहीं, ओपनिंग जब ब्रैकेट। तक या तो हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती है, या फिर हमें कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं मिल जाता है जिसकी प्रेसिडेंस प्लस से कम हो। ज्यादा हो। प्लस से कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये होता पावर, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कहीं पे, पहले इसी एग्जाम्पल को करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो प्लस आया तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से डिवाइड को पॉप कर देंगे। ABC डिवाइड, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस ये एंड प्लस। एंड अब इसके प्लस के बाद क्या आया? फिर से हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट किस में जाएगी? ये स्टैक। स्टैक में स्टेप प्लस, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट। अब ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या आया हमारे पास? पाम और डी है। डी में डी। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या आया हमारे पास यहाँ पे? डी। डी डी ऑपरेंड। कहाँ पे जाएगा? पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में डी। वेरी गुड। अब डी के बाद हमारे पास क्या आया है? पाम और पावर। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ऐसा होता कि पहले अगर जस्ट एज्यूम कर लो कि यहाँ, ठीक है, पहले पावर को ऐड करो। पावर, तो पावर किस में जाएगी? स्टैक। स्टेप में स्टैक में मैम माइनस ये प्लस, फिर से ये, फिर पावर। पावर के बाद हमारे पास क्या आया है? ई ऑपरेंड। ई। तो ई किस में जाएगा हमारा? पोस्टफिक्स में ABC स्लैश ई। डी ई के बाद हमारे पास क्या आया है?
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एज्यूम करो कि अगर हमारे पास पहले ये होता माइनस दिस से प्लस, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट होती है हमारे पास अगर, एंड उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे मान लो जस्ट एज्यूम इन केस अगर प्लस होता फिर पावर होती, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिमूव करते तो मल्टीप्लाई से हम लोग देखते कि मल्टीप्लाई से ज्यादा और उसके इक्वल की प्रेसिडेंस किसकी है, पावर की है। तो हम सिर्फ पावर को पॉप करते हैं, यहाँ पे प्लस को पॉप नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पावर को पॉप करके यहाँ पे मल्टीप्लाई को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तब हम इस केस में प्लस को पॉप नहीं करते बिकॉज प्लस की प्रेसिडेंस पावर इससे मल्टीप्लाई से छोटी है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैम जिसकी प्रेसिडेंस कम होगी उसको पॉप नहीं करेंगे। यस, उसको नहीं करेंगे। इसकी हायर होगी या इक्वल होगी। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या आया है, एफ ऑफ रेंज। एफ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एफ कहाँ पे ऐड हो जाएगा, पोस्ट फिक्स। मैम यहाँ पे प्लस कहाँ से आया? मैंने जस्ट एग्जांपल दिया सर कि अगर यहाँ पे प्लस होता। यस मैम हटा दीजिए ना। हटा दिया है, ये वाला प्लस तो ये सी वाला प्लस है। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना? हाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ओके मैम, नेक्स्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आई है अभी, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमें क्या करना है, जब तक हमें उसकी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती है हमें एलिमेंट्स को पॉप करते जाना है। पॉप करना है। यस मैम। तो अब यहाँ पे पॉप कैसे करेंगे, पहले ए बी सी डी ई पावर एफ। अब उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ टॉप पे क्या है, मल्टीप्लाई। तब हम लोग मल्टीप्लाई को यहाँ से पॉप करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यस मैम। मल्टीप्लाई के बाद फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट क्या आ जाएगी। तो ओपनिंग ब्रैकेट को तो हमें डिस्कार्ड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, फिर से ये, फिर प्लस, इतना। अब क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या आया है, डिवाइड। बस क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड की प्रेसिडेंस देखो, इससे क्या है, प्लस से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है मैम। उसको ठीक है। इसको हम लोग चुपचाप से इसमें ऐड कर देंगे, प्लस फिर डिवाइड। डिवाइड के बाद कौन सा आ रहा है हमारे पास, जी ऑपरेंड। जी को भी यहाँ पे लोग इस हमारे जो पोस्ट फिक्स है उसमें ऐड कर देंगे, पावर एफ मल्टीप्लाई जी। अब जी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, क्लोजिंग ब्रैकेट। मैम। क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो जब तक हमें क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे, सॉरी ऑपरेटर्स को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी डिवाइड जी ई मल्टीप्लाई ई पावर एफ मल्टीप्लाई नो डी ई पावर एफ मल्टीप्लाई जी। प्लस डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या आएगा, डिवाइड आएगा, प्लस आएगा, डिवाइड मैम। डिवाइड आएगा। यहाँ पे देखो हमारे ज्यादा पास है। ऐसे नहीं होएगा, प्रेसिडेंस के हिसाब से नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप कहाँ पे था, डिवाइड मैम। डिवाइड पे top था, तो पहले पॉप उसको करेंगे। हाँ जी, पहले डिवाइड को पॉप किया यहाँ से, फिर साथ के प्लस साथ को डिवाइड करेंगे। यहाँ से remove हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, अब मैं इसी को यहाँ ऊपर कॉपी कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस इन द फर्स्ट लाइन। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, माइनस ओपनिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, अब ओपनिंग माइनस प्लस। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आया है,
मल्टीप्लाई, multiply. मल्टीप्लाई के प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हम उसको क्या कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, H H operand. एच आया हमारे पास, Postfix अब में एच को insert क्या जाएगा. जाएगा पोस्टफिक्स में, Yes ma'am. Direct. आपके साथ में क्या आ जाएगा एच। अब लास्ट में हमारे पास क्या आया है, Closing bracket. क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट जाएंगे तो मल्टीप्लाई और माइनस को उधर लेते जाएंगे बस, स्टेक। हाँ Yes ma'am. खत्म इसके साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई देन माइनस, फिनिश। लेकिन मैम काफी टाइम कंज्यूमिंग है. नहीं ये तो अभी हमने मैन्युअली किया ना सर, अभी जो हमने इसका ये एल्गोरिदम डिस्कस किया था, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम में मैम तो और टाइम लगेगा ना. नहीं प्रोग्राम में टाइम क्यों लगेगा, एक बार आपने प्रोग्राम बना दिया उसके बाद तो प्रोग्राम खुद से इवैल्यूएट करके देगा। हेलो मैम। Yes ma'am. हाँ जी Yes, सर ma'am. बोलिए। मैम वो लास्ट में जो एंड किए थे उससे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज किए थे, प्लस वाला ना? कहाँ पे एंड किए थे, लास्ट में मैम एच 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 के पहले देखो हमारे पास मैम इनपुट में जो हम एच रखे हैं उसमें बोल रहे हैं, और हाँ जी। पोस्ट फिक्स में जो, हाँ पोस्ट फिक्स जो है ना मैम, उसमें देखिए ना लास्ट में जो एंड किए है उसमें क्या ऑपरेटर है, एच के बाद एच के बाद एच का मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई माइनस। अच्छा ओके ओके ठीक मैम। है बढ़िया. ठीक है. ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है गाइस, जो आप लोगों का मैं समझ सकती हूँ, एज ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने किया था तो आपको भी तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए ना। अभी नेक्स्ट आता है, अगर हम कन्वर्ट करना हो इनफिक्स टू प्रीफिक्स, अभी जस्ट हमने कन्वर्ट किया था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। एज प्रीफिक्स इज नोन एज पॉलिश एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले रिवर्स कर देनी इनफिक्स स्ट्रिंग्स को, फिर कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, एंड उसके बाद रिवर्स कर देना पोस्टफिक्स को। बिकॉज जो आपका प्रीफिक्स होता है ये किस पे फॉलो, कौन सा रूल फॉलो करता है, राइट टू लेफ्ट। Yes ma'am. It always started from the right side, not from the left side. So, for example, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो, हमारे पास ये वाली एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। Postfix में करके. ठीक है, नहीं पहले इसको रिवर्स करेंगे इनफिक्स में ही, रिवर्स करने के बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स में। एंड पोस्टफिक्स का हमारे पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर को फिर से रिवर्स कर देंगे, वो क्या बन जाएगा आपका प्रीफिक्स। Prefix. फॉर एग्जाम्पल लेट मी अगेन गिव यू द एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग का रिवर्स करेंगे, तो क्या आ जाएगा, d माइनस सी पावर E डिवाइड बाय A। ए। अब इसके बाद डबल इस रिवर्स string का करना पड़ेगा. यस, इस स्ट्रिंग का हम लोग इसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस स्ट्रिंग को Postfix में. पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से स्ट्रिंग का उसको रिवर्स करके इनफिक्स में कर देंगे तो मेरा नहीं, इनफिक्स में हो जाएगा. रिवर्स करके वो इनफिक्स में, रिवर्स करके वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। इनफिक्स हो जाएगा. प्रीफिक्स। क्योंकि देखो पोस्टफिक्स में अगर आपने देखा Yes, होगा, पहले आपके ऑपरेंड्स होंगे, बाद में आपके ऑपरेटर्स होंगे। Yes मैम. बट प्रीफिक्स में क्या करना है, पोस्टफिक्स को जस्ट उसको रिवर्स कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आउटपुट आ रही है पोस्टफिक्स की, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस डिवाइड ए, नहीं CBA. CBA आएगा मैम। हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देना है प्रीफिक्स के लिए। सो अंडरस्टूड गाइस, Yes मैम. these two methods. I'm listening only from one student. What about the rest of the batch? यस मैम। यस मैम, डन मैम, बहुत बढ़िया समझाइए मैम।
ये वो तो है ना, अगर आप समझ रहे हो तो। यस मैम, आज Yes, बहुत ma'am. बढ़िया समझाए यार। अब बढ़िया समझाइए मैम, एल्गोरिदम देख के पागल हो गए थे हम। एल्गोरिदम तो देखो एक बार लगेंगे, ठीक है ना, उसके बाद अभी तो ये देखो एल्गोरिदम्स आपको लगेंगे इतने बड़े, बट अगर इनको एग्जांपल्स के थ्रू साथ साथ में सॉल्व करोगे, आप देखो अगर एग्जांपल समझ में आ गया आपको एल्गोरिदम भी याद हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। एल्गोरिदम तो अब अपने से क्रिएट कर लेंगे। नहीं अपने लेकिन से मैम create- प्रोग्राम नहीं हो पाता है ना। वो भी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना। मेन देखो, मेन प्रॉब्लम मैम वहीं पे होता है, प्रोग्राम ही नहीं बन पाता। कैसे उसके लिए बनाएंगे? आप यू नीड टू थिंक ऑन द लॉजिक। मैम तो लॉजिक तो समझ ही गए हैं इसको, हाँ तो ऐसे बस ऐसे इस करना लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको पूरा एक साथ मत करो ना। सबसे पहले उसको फॉर ऑपरेटर्स के लिए बनाओ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसमें स्मॉल स्ट्रिंग्स के लिए बनाओ। यस मैम। So guys, next is the evaluation of postfix expression. Means अगर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, आज जस्ट हमने ये एग्जांपल देखी है, कंप्यूटर में ये सेव तो ऐसे होगा, कंप्यूटर में ये सेव ऐसे होगा। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? ये कंप्यूटर में इस टर्म में सॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जस्ट कंसीडर, ए को क्या कंसीडर करो आप लोग 3, बी को कंसीडर करो 1, सी इक्वल्स टू अगेन 1, डी इक्वल्स टू 5, ई इक्वल्स टू 1, and then f equals to again 2, g equals to 2 and h equals to 4। अगर आपको ये दिया जाए, बोले इसका आंसर निकालो, कर सकते हो कैलकुलेट? यस मैम। कैसे बताइए जरा, कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? मैम वो रूल लगा सकते हैं ना, जो बदमाश का रूल हो सकता है मैम। यहाँ पे कौन सा, कैसे रूल लगाओगे? सबसे पहले डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे नहीं करके ना, कर सकते हैं। नहीं, अच्छा करो, नहीं होगा मैम नहीं होगा यहाँ पे मैम। इस लॉजिक को कंप्यूटर समझेगा, हम लोग इसको थोड़ी ना कर पाएंगे लोग। लेकिन मैम यहाँ पर जो पावर है ना वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, पावर का भी मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अब कोई भी नहीं हो पाएगा। पावर से नहीं मैम, इस लॉजिक को केवल कंप्यूटर ही रन कर सकता है, हम लोग नहीं। यस, बिकॉज देखो गाइस, अब देखो अगर इस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 5, राइट? यस मैम, यस। 1 पावर 1 एंड देन 1, जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल बी मल्टीप्लाई विद 2, एंड उसके बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ पे तो देख के पता ही नहीं क्या आ रहा है। नहीं आएगा मैम, इसलिए लास्ट में देखिए ना, मल्टीप्लाई और माइनस, ऐसे ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सेशन है अभी 2 o'clock। नो मैम। नो मैम, लास्ट Okay. सेशन। Okay, sir, guys. So again, in the computer, as human, you are facing the problem. So we are having the solution of computers. Again, इसके लिए प्रोग्राम है। तो again हमें क्या करना है? इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? स्कैन करेंगे हर एक कैरेक्टर को, एवरी कैरेक्टर ऑफ योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, एंड रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 3 एंड 4 को, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, लास्ट वाली आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलती है। यस मैम। एंड अगेन अब देखो पहले क्या था, जब कन्वर्ट कर रहे थे ऑपरेंड को स्टैक में पुश नहीं करना था, बट हियर जैसे ही कोई ऑपरेंड आएगा हम उसको क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू पुश दैट ऑपरेंड इनटू स्टैक। जितने भी आपके ऑपरेंड्स आएंगे, वेरिएबल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे स्टैक में पुश होंगे। एंड अगर आपको कोई भी ऑपरेटर मिलता है, इफ यू फाइंड द ऑपरेटर, तो हम लोग क्या करेंगे? टॉप 2 एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करेंगे, एंड जो हमारा टॉप एलिमेंट होगा वो क्या होगा? आपका A। जो नेक्स्ट टॉप एलिमेंट होगा वो क्या होगा? आपका B। एंड इवैल्यूएट करेंगे B ऑपरेटर A।
अब ये याद रखना, जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा टॉप के बाद का एलिमेंट, उसको हम पहला एलिमेंट कंसीडर करेंगे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। Yes. और उसके बाद फिर से जो भी दो उनको परफॉर्म करके रिजल्ट आएगा उसको फिर से हम किस में स्टोर करेंगे, स्टैक में। एंड वो जो एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट एंड फिनिश। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग द एग्जाम्पल, पहले यही करते हैं दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कन्वर्ट किया एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, यहाँ पे अगेन गाइस हमें क्या करते जाना है, अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इनपुट होगा, फिर उसको हम स्टैक में करेंगे एंड आउटपुट। सबसे पहले पोस्टफिक्स होगा। ओके, सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट क्या आई है, ओपनिंग ब्रैकेट 9 सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट, इससे हमें पता चल जाए कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सबसे पहले क्या आया है, 9 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल 9 को क्या करेंगे हम लोग, स्टैक में पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया है, फिर से 9 मैम। 9 के बाद क्या आया है, 3 3। तो हम 3 को भी किस में पुश करेंगे, स्टैक में। पहले से 9 था, फिर क्या गया 3, नेक्स्ट क्या आया हमारे पास 4। 4। तो क्या आ जाएगा इधर, पहले क्या था 9 3 4 देन 4। अब यहाँ पे आपको मजा आएगा, अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, अगर कोई भी ऑपरेटर आए तो हमें क्या करना है, वो आउटपुट में चल जाएगा। स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो सबसे फर्स्ट टॉप एलिमेंट हमारे पास क्या था, 3 4 को रिमूव कर देंगे, 4। और तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुन तो लो पहले, ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एंड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉप एलिमेंट है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं बी, वो क्या हो जाएगा 3। एंड अभी हमने एल्गोरिथम में पढ़ा, हमें कंप्यूट क्या करना है, बी ऑपरेटर ए। तब हमारे पास यहाँ बी की वैल्यू क्या है 3 एंड ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, मल्टीप्लाई। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 करने के बाद रिजल्ट क्या आया 12। तो पहले से स्टैक में क्या बच गया था 9, उसके साथ और क्या इंसर्ट कर देंगे 12। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है 8। 8। तो 8 कहाँ पे जाएगा, 9 12 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 12 8 के बाद हमारे पास क्या आया है प्लस प्लस ऑपरेटर। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे हम यहाँ से, 8 12 8 एंड 12 20 हो जाएगा मैम। 8 और 12 को रिमूव 20 हो जाएगा, करेंगे, 9 20। 9 20 डायरेक्ट लिख दीजिए मैम। 8 और 12 को रिमूव करेंगे एंड उसके बाद वो क्या बन जाएगा 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। 9 देन 20। उसके बाद क्या आया हमारे पास 4 4 9 4 24। कहाँ पे जाएगा 9 24 924। 924 9 20। then 4 4 के बाद क्या है हमारे पास, डिवाइड। तो इसको मैं जस्ट ऊपर कॉपी कर दी हूँ। 20 डिवाइड 4 5 हो जाएगा मैम। 95 2 into उसके बाद हमारे पास क्या है डिवाइड, 95 लिख दीजिए मैम ये डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 20 डिवाइड 4, क्या बच जाएगा यहाँ पे 95 लिख दीजिए। 5। जिसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचा माइनस है मैम। माइनस नेगेटिव
4 हो जाएगा मैम, क्या आंसर 4। जाएगा? 9 minus 5. 9 minus 4 मैम, 4 लास्ट में क्या आया? 4 आंसर। लास्ट में क्या आया हमारे पास? क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट मैम, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है ना? closed bracket. जब तक हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट हमें नहीं मिलती है, हमें क्या करना है? एवरी कैरेक्टर को स्कैन करना है। जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, वी आर कम आउट ऑफ द लूप। topmost element of the stack. ठीक है, और क्या करवा देंगे? रिजल्ट को क्या करवा देंगे? टॉप मोस्ट एलिमेंट करवा के एग्जिट। और ये प्रिंट क्या करवा Yes. देगा? आंसर 4। topmost element. कभी तक देखो हम, यस गाइस, कभी तक देखो हम लोग क्या करते हैं, इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस देते हैं कंप्यूटर में, विद इन अ सेकंड रिजल्ट आ जाता है। Yes ma'am. इस वे में हमारा वो आंसर्स कैलकुलेट होते हैं। हेलो मैम, यस सर। मैम वहाँ तो माइनस है तो 9 और 5 है।